Good morning to all. Welcome in KVS RO Delhi Live. आज हम लोग आगे बढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। लेक्चर 2 में हम लोगों ने प्रीवियस केमिकल काइनेटिक्स में क्या सीखा है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा था हमने, और उसमें हमने कुछ नेगेटिव साइन का, पॉजिटिव साइन का इसका इम्पोर्टेंस देखा था कि हम जब रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं तो, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीखा था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था the sum of exponent in rate law expression. So x is the order with respect to A, y is the order with respect to B. So x plus y is overall order of reaction. But it is not equal to stoichiometric coefficient of A, or y is not equal to stoichiometric coefficient of B, but it may be, because it is a totally experimental quantity. So calculate the order of reaction. तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? X is the order with respect to A, y is the order with respect to B. So x plus y is overall order of reaction. For example, हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, R is equal to K, A पर पावर 1/2, B पर पावर 3/2. What is the order of reaction? So overall order is equal to half plus 3/2. So second order reaction. So half order with respect to A and 3/2 order with respect to B. So we can find out. Similarly, -1. So overall order -1. So half is the overall order. So you can find out. Now, after the order of reaction, and order of reaction, order is determined by slowest step. For example, a team of relay race, on depending upon the slowest member of the team, उनका जो सबसे स्लोएस्ट मेंबर है उसी मेंबर पे डिपेंड करेगा उस टीम की जीत। तो इसका मतलब आपको हर हमेशा याद रखना है कि जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी से हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स हमारा होता है। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट इज मोलरिटी. व्हाट इज मोलरिटी? बिफोर डिस्कसिंग molarity, we would like to introduce the type of reaction, elementary reaction and complex reactions. Elementary reactions are those which occurs in a single step. Those are called elementary reactions. And complex reactions are those which includes a sequence of many elementary reactions. So, elementary reactions are those which occurs completed in a single step. And what is molecularity? Molecularity is
the number of reacting species, it may be atoms, ions or molecules taking part in an elementary reactions which must collide simultaneously to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. So molecularity, on the basis of molecularity, reaction may be unimolecular, reaction may be bimolecular, termolecular, but more than 3 molecularity is not possible. Why? Because the simultaneous collision of more than 3 molecules is a very rare. So it may be unimolecular, it may be bimolecular, it may be termolecular. For example, decomposition of ammonium nitrite. Ammonium nitrite gives N2 plus 2H2. So this is an elementary reaction and only one molecules taking part in a reaction. So this is called unimolecular reaction. This is called unimolecular reaction. Similarly, 2 moles of hydrogen iodide on decomposition gives H2 plus I2. So this is also elementary reaction. So here 2 molecules participate in the reaction. So this is called bimolecular reaction. Bimolecular reaction. Because the 2 molecules taking part in a chemical reaction and the collisions are simultaneously. Similarly, 2 moles of nitric oxide, 1 mole of oxygen gives 2 mole of nitrogen dioxide. So here total number of molecules is 3. So it is termolecular. Molecularity is 3. Termolecular reaction. But the probability that more than 3 molecules can collide and react simultaneously is very small. Hence, the reaction with the molecularity 3 are very rare and slow to proceed. What is the difference between molecularity and order of reaction? Difference between order of reaction molecularity. So first part is definition. Order of reaction is experimental quantity. Experimental quantity. And molecularity is a theoretical concept. Theoretical concept. Because order of reaction always determined through experiment, but it is a theoretical concept. Order of reaction, it may be 0, or even fraction,
never be zero, because it is the number of molecules taking part in a chemical reaction. So if molecule is zero, there is no reaction, so it never be zero. Or a non-integer, order is applicable to elementary as well as complex reaction. Applicable to elementary as well as complex reaction. What is elementary reaction? Elementary reaction are those which takes place in a single step, but complex reaction is a set of elementary reactions. And only applicable for elementary reaction. For elementary reaction. So this is the main difference between order of reaction and molecularity. So molecularity is the number of molecules in an elementary reaction taking parts in the reaction that must collide simultaneously to bring about a chemical reaction, but it is the sum of exponents in the rate law expression. So for complex reactions, how a sequence is made? That is reaction mechanism. Reaction mechanism is a just probable path, and probable path क्यों लिया जाता है कि इंडस्ट्री में मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए कि किस पाथ से हमें जो यील्ड है, जो प्रोडक्ट है, वो मैक्सिमम मिलता है, इसीलिए ये रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। और जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो एक N2O5 O2 एक्सपेरिमेंटल डाटा बोल रहा है ये, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, but here stoichiometric coefficient is 2 and the reaction is a first order reaction, so it must be a complex reaction. It is not an elementary reaction because both the molecules do not take part in the reaction simultaneously. So this is the rate determining steps. So this one is slow, N2O5 slow step, because this is rate determining step. So अब देखिए बेटे, आपने यहाँ पर O2 लिखा, तो यदि हम लिख देते हैं यहाँ पर NO2, तो ये बैलेंस नहीं होगा। तो क्या करेंगे, जो मैक्सिमम हम इस तरफ का चीज लिख सकते हैं उसको लिखते हैं। तो ये देखो हमने लिखा NO2। अब जो लेफ्ट आउट है इसमें से क्या है, एक नाइट्रोजन बचा है, ऑक्सीजन कितना बचा, 3। तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारा इंटरमीडिएट है, जो आप प्रोडक्ट में नहीं देख रहे हैं लेकिन बन गया है थोड़ी देर के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ये बना है लेकिन कंज्यूम हो जाएगा। और किसके साथ कंज्यूम होगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंज्यूम होगा, NO3 और प्लस N2O5। तो ये रिएक्शन कैसा है, फास्ट रिएक्शन। अब आपने NO2 तो बनाया था, क्या बनाएंगे, O2। अब जो बच गया आपको, नाइट्रोजन कितना है, 3, NO2। तो ये फास्ट रिएक्शन है। यदि दोनों को आप फिर सम करेंगे तो क्या आएगा,
2N2O5, ये कैंसिल हो जाएगा, 4NO2 + O2। तो इस तरह से यदि हमारे पास कोई रेट लॉ दिया हुआ है तो आप मैकेनिज्म लिख सकते हैं। और बेटा यदि हमें ये पार्ट दिया हुआ है, मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो हम रेट लॉ बता सकते हैं स्लो को देख करके। एक एग्जांपल और देखते हैं, टेक वन एग्जांपल मोर। माइनस, ये भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कैसे पता लगेगा, ये देखिए, ये नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज यहां पर कितना दिख रहा है, 3, बट द रेट डिपेंड्स ओनली अपॉन 2 मोल्स ऑफ ClO माइनस। तो बेटे स्लो में आपको क्या करना है, देखो ClO माइनस, इस पे लिखिए स्लो, क्योंकि रेट आपको बताया एक्सपेरिमेंट से। अब ये तो बना नहीं सकते बेटा ClO3, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन 2 ही है, तो Cl माइनस बनाओ। और क्या लेफ्ट आउट केस क्या है, देखो Cl और ऑक्सीजन 2 और माइनस, फिर ये क्या बन गया बेटा, ये आपके पास प्रोडक्ट में नहीं है, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब इसको कंज्यूम होना है फास्ट स्टेप में। एक बच गया आपको मॉलिक्यूल, तो ले लीजिए फास्ट। तो क्या बनाएंगे आप, ClO3 माइनस, और ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया Cl माइनस, दोनों को ऐड करिए, फिर देखिए ये पार्ट कट गया, यही आपको आ रहा है। तो इस तरह से आप, कई बार आपको लगेगा कि ये रिएक्शन का जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, जो रिएक्टिंग स्पेसीज, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में भाग ही नहीं लेता। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए बेटे, NO2 + CO gives NO + CO2। इस रिएक्शन में यदि आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पर R = K, NO2 का पावर 2 है। देखिए यहाँ पर एक ही था, CO पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है इसका रिएक्शन रेट, एक्सपेरिमेंट कर रहा है नहीं, NO2 का 2 टर्म इसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है यहाँ पर। तो देखिए इसका स्लो क्या लिखेंगे मैकेनिज्म में हम लोग, NO2 + NO2, 2 मोल स्लो लिखेंगे। क्या बना दिया, NO, बचा आपके पास क्या बेटा, NO3। ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट फास्ट स्टेप में CO के साथ कंज्यूम हो जाएगा। ये देखिए, सो 1NO2 फिर हमारा बन रहा है, जो कंज्यूम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कभी कभी लगेगा कि यहाँ पर, तो यहाँ पर होना ही कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कि रेट इस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये 3-4 एग्जाम्पल से मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा कि मैकेनिज्म हम कैसे करें। नेक्स्ट चलते हैं। How can you determine order of reactions? So there are various methods for determining the order of reaction. Method of determination of reactions में जो लेंगे आप order, तो first है graphical method. Graphical method, ये क्या कहता है graphical method? कि हमारा यदि रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिर्फ
कंसंट्रेशन वन टर्म से, मतलब जितना हम इसको बढ़ाते हैं कंसंट्रेशन उतना रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यदि बेटा रेट इज इक्वल टू के हो जाता है, इसका मतलब ये कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड ही नहीं करता, तो हम क्या बोलते हैं, ये कैसा है, जीरो ऑर्डर, मतलब एक फ्लैट हो जाएगा आपका, के पर डिपेंड करेगा। और रेट इज इक्वल टू के स्क्वायर के साथ, मतलब कंसंट्रेशन टर्म के स्क्वायर के साथ यदि रेट का लीनियर ग्राफ है तो हम क्या क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर। लेकिन बेटे जानते हो इसमें यदि हमारा एक टाइप ऐसा हो जाए कि ए और बी दो स्पेसीज हो जाए रिएक्टिंग, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर आपको इस मेथड में ये लिमिटेशन आ जाता है कि यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही ये दो डिफरेंट तरह के रिएक्टिंग स्पेसीज आ गया, तो जैसे HI का पावर 2 था तो ठीक है, लेकिन H2 + I2 आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये ग्राफिकल मेथड है, तो इसमें कभी भी आप इसको यूज करें कि यदि आपको रेट कंसंट्रेशन के वन टर्म से बेटा लीनियर है, मतलब ग्राफ है, तो फर्स्ट ऑर्डर, यदि उस पर डिपेंड ही नहीं करता, एक फ्लैट आ रहा है तो जीरो ऑर्डर, और स्क्वायर के साथ यदि लीनियर आ रहा है तो सेकेंड ऑर्डर। एक मेथड होता है आइसोलेशन मेथड, बहुत ओल्ड मेथड है। आइसोलेशन मेथड का मतलब होता है बेटा कि आप एक, जैसे आपके पास दो रिएक्टिंग स्पेसीज है या तीन रिएक्टिंग स्पेसीज है, तो दो को आप बहुत एक्सेस में कर दीजिए जिससे कि रेट उस पर डिपेंड नहीं करे, और एक को रखिए माइनर अमाउंट में, तो आप ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंटल डाटा कि उससे किस तरह से हमारा रिएक्शन का रेट इफेक्टेड होता है, और आपको पता लग जाएगा। फिर उसको एलिमिनेट करके दूसरे पर देखिए और दो को एक्सेस कर दीजिए, फिर उसको फिर एलिमिनेट कर लीजिए, फिर तीसरे को एक्सेस करिए। इस तरह से आप आइसोलेशन मेथड से निकाल सकते हैं। और हमें जो अपने एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो दो मेथड है, एक तो बेटा है इनिशियल रेट मेथड और दूसरा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसलिए करते हैं कि जब आप स्लोप से टेंजेंट निकालते हैं तो कई बार वहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, एक्सपेरिमेंटल एरर होता है, तो इसलिए उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो पहले हम लोग देखें इनिशियल रेट मेथड। जैसे एक रिएक्शन है, NO2, इसमें जो एक्सपेरिमेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन किसका, NO का मोल पर लीटर में, इनिशियल कंसंट्रेशन किसका, O2 का मोल पर लीटर में, और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, यूनिट रख लेंगे मोल पर लीटर पर मिनट। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ NO and O2, यू आल्सो कॉल्ड रेट लॉ। आपको रेट लॉ बताना है, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। अब डाटा क्या क्या दिया हुआ है हमारा, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, 4, 0.30, 0.60,
0.30 और 0.60। इस O2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.30, 0.60, 0.60। पहले एक्सपेरिमेंट में ऑर्डर है 0.096, दूसरे है 0.384, 0.192, 0.768। ये डाटा हमको मिला कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कंसंट्रेशन रखा, इनिशियल कंसंट्रेशन NO का 0.30, O2 का 0.30, तो रेट है 0.096 मोल पर लीटर पर मिनट। फिर इसमें देखो बेटा क्या किया कि O2 का कंसंट्रेशन तो फिक्स रखा, इसके कंसंट्रेशन को डबल किया, तो रेट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो एक तो आप देख कर भी कर सकते। सो 2NO plus O2 gives 2NO2. The experiment number 1, 2, 3, 4, 0.30, 0.60, initial 0.30. This is initial concentration of O2 and this is initial rate of formation of NO2. So determine the rate law and also calculate rate constant. So how can you calculate rate law? So let us find a so this is not determined, so let x is the order with respect to NO and y is the order with respect to O2. So the first equation, rate 0.096 के 0.30 power x point power 1. Question number 1. Equation second, rate is 0.384 is equal to k 0.60 per power x, 0.30 per power 1. In 3 is 0.192 k 0.30 per power x, 0.60 per power y. So from equation second and 1, second by 1, तो 0.384 by 0.096 096. So this one is same term, so 0.30 cancel out, k cancel हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 0.60 पर पावर x, 0.30 पर पावर x. ये कितना बन रहा है बेटा 4 और ये 2 की पावर x, तो इसको 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर x. So x is equal to 2. x is equal to 2. Similarly, यदि हम इस इक्वेशन में चलें थर्ड बाय 1, थर्ड देखिए क्या है 0.192 बाय 0.096, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये लाइक
टर्म था दोनों में k 0.30x k 0.30x, ये बेटा क्या बन गया 2 की पावर 1 और यहाँ 2 की पावर y, सो y इज इक्वल टू 1। सो हमारा रेट लॉ इसका क्या निकल कर आ गया, रेट आ गया आपका r इज इक्वल टू k NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। तो इस तरह से हम लोग ये यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, थर्ड। और रेट कांस्टेंट निकालना है तब कैसे करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में आप इसका वैल्यू रख देते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में। तो देखिए ये हमने ले लिया 0.096 इक्वल टू के 0.30 पर पावर 2 और 0.30 पर पावर 1। तो यहाँ से बेटा हमारा क्या निकल जाएगा के, और थर्ड ऑर्डर का यूनिट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इनिशियल रेट मेथड से रेट लॉ डिटरमाइन कर सकते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड पहले लिखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहां पर हमारा कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसका रेट माइनस डी ए वाई डी टी इज इक्वल टू के टू द पावर क्या होगा 0। सो टू द पावर 0, अब ए टू द पावर 0 क्या होगा 1 हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये किसी भी पावर पे 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या बचा हमारे पास माइनस डी ए, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो k dt माइनस ये देखिए ये हमारा k बचा बेटा, ये dt इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इधर ले आए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बोथ साइड्स। तो यहां पर हमारा ये आ गया a माइनस के टी और प्लस आई, आई क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहां से हमारा for evaluating the value of I when t is equal to 0 means initial time reaction, so A is equal to A naught. A naught is the initial concentration and reaction just had to start, अभी होना है उसको, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी A naught। So putting the value of I integration constant in equation 1, so क्या आ रहा है हमारा A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। सो यहाँ से हम लोग ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y m x और c। यदि आप प्लॉट करें
T कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, कंसंट्रेशन है ये, यहां से आपका क्या है, ये A0 है, इंटरसेप्ट इनिशियल टाइम पे। तो स्लोप क्या रहा हमारा, -k, स्लोप आ रहा है -k। तो यहां से यदि हम लोग इसको रीअरेंज करें तो क्या आएगा, k = A0 - A/T। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट कैसे निकल गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t एंड दिस इज द टाइम t, रेट कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जीरो ऑर्डर का आप इंटीग्रेटेड फार्मूला निकाल सकते हैं। सिमिलरली फॉर फर्स्ट ऑर्डर, for first order reaction, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रीअरेंज करो इनको, तो -dA/A = k dt, ये प्लस ये माइनस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो फॉर्मूला dx/x का ln x होता है, क्या आएगा ये ln A = -kt प्लस I अगेन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इक्वेशन 2, I हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फिर वही when t = 0, ln A हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ln A0, जैसे इसमें t 0 रहेगा ये ln A0 हो जाएगा। आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 2, it becomes ln A -kt plus ln A0। तो देखो यहाँ पर आप इसको प्लॉट करेंगे, ln A वर्सेस t, ये हमारा इंटरसेप्ट है ln A0 और स्लोप क्या है हमारा -k। बेटा यहाँ पर ध्यान रखना आपको, ठीक इस तरह का ग्राफ दे करके आपको पूछेंगे आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर उसका यूनिट क्या है रेट कांस्टेंट का। तो आपको ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम t प्लॉट हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यदि ln A मतलब लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम t है, और तब क्योंकि नेचर एक जैसा दिखता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि यदि यहाँ पर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है तब जीरो ऑर्डर, और लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है तो फर्स्ट ऑर्डर। सो रीअरेंज करें, kt ln A0 माइनस ln A। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग के लॉग कर लीजिए, लॉग A0/A, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई t। ये जो यहाँ पर लिया लॉग के बदले ln के बदले बेटा क्या आता है, लॉग 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये log m माइनस log n, तो log m माइनस log n ये आ गया 2.303 यहाँ। इसका यदि आप प्लॉट देखें तो कैसा प्लॉट आएगा, ये हम
कंसंट्रेशन है हमारा log ऑफ ए नॉट बाय ए और वर्सेस टी। ये देखो इंटरसेप्ट 0 यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो स्लोप है हमारा, स्लोप इज इक्वल टू के बाय 2.303। तो जब भी आपको स्लोप पता चल जाए इसका, तो आप मल्टीप्लाई करके 2.303 से के निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस फॉर्मूला से आप यहाँ पर रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और एक फॉर्मूला ये बनेगा जिससे हम के निकाल सकते हैं। यदि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पर हमने माइनस के टी, तो ये क्या हो जाएगा ln a माइनस ln a नॉट, ये हो जाएगा हमारा ln a बाय a नॉट माइनस के टी। एंटीलॉग बोथ साइड क्या आएगा ए टी इक्वल टू ए बाय ए नॉट। सो ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारा फर्स्ट लॉ का आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का रेट निकाल सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेटा, और हाफ लाइफ देखेंगे। और आज हम लोगों ने जो सीखा है वो हमने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारा, कि एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है और मॉलिक्यूलरिटी जो होता है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस जो देखेंगे वो हमारा यहाँ पर 0 और नॉन इंटीजर नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ग्राफिकल मेथड से देखा, और इनिशियल रेट मेथड से देखा, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से देखा। थैंक यू।